Suppose we are seeing Rahul, television, Amritsar, or cat. So, what are these? These are names. Name of a person, place, animal, or a thing. So, these are called naming words, and these naming words are called nouns. So, a noun is the name of a person, place, thing, quality, condition, and action. For example, name of a person, that is Arvind. Place is Shimla. Animal is chick. Thing, swing. Quality is wisdom. Right? किसी की अच्छाई, wisdom. किसी की सच्चाई, that is quality of a person. Action is a boy kicking the ball. Condition is illness. So next are types of nouns. There are two categories of nouns, that is countable nouns and uncountable nouns. And in the category of countable nouns comes the proper noun, common noun and collective noun. Uncountable nouns are material concrete noun or abstract noun. Countable nouns, the nouns which can be counted. Suppose there are 2 pens, 3 pens, 4 pens. It could both be in a singular and plural form. Singular means he, she, it, name. Plural form means I, you, we, they. More than one. Singular means only one and plural means more than one. You can make a countable noun plural and attach to a plural verb in a sentence. We can attach it to countable nouns होते हैं जो हम उनको प्लूरल फॉर्म में भी बना सकते हैं. ठीक है, जैसे गर्ल, गर्ल्स, मैन, मेन. तो और इसको अटैच कर सकते हैं प्लूरल वर्ब के साथ सेंटेंस में, जैसे कि गर्ल्स गो टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जाती हैं. सो ये हम वर्ब क्या है इसमें, गो. ठीक है, एंड गर्ल्स हमने नाउन को प्लूरल कर दिया है. एग्जाम्पल, गर्ल्स, tickets, milk. So what is proper noun? The noun which denotes a proper person, place or thing. Proper पर्सन मतलब उसका नाम, जो भी उसका स्पेशल नेम होगा, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या किसी चीज़ का नाम, दैट इज प्रॉपर नाउन. और ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं, जैसे कि डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे. मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक्सेट्रा. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, institutions, organization, religions, their holy texts and their adherents are proper noun. Adherents means somebody who supports a particular idea. Religion, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम ये यूज़ करते हैं. और institutions जैसे कि है कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी. सो दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशंस. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हीरो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल. होली टेक्स्ट जितने भी होते हैं, जैसे कि होली टेक्स्ट लाइक ओम नमः शिवाय. सो दे ऑल बिगिन विद द कैपिटल लेटर. और जितने भी उनको सपोर्ट करने वाले आइडियाज़ हैं वो सारे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं. सो दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स.
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले प्रॉपर पर्सन. सो प्रॉपर पर्सन में हमने कहा था कि स्पेशल नेम्स आते हैं जैसे कि मिकी, अर्जित, विनय. प्रॉपर प्लेस इज शिमला, मुंबई, दिल्ली. प्रॉपर थिंग रामायण, गीता, महाभारता. यूजुअली इनके आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं. कॉमन नाउन. The noun which denotes a common person, place or thing in a general sense. Common noun क्या होता है? The noun that denotes a common person, boy, girl, etc. Place or a thing in a general sense. Like thing जैसे होता है कि car. Nobody knows which car, but car. And place is some place, park for example, that is a place but the name is not mentioned. Usually we should write it with a capital letter only when it begins a sentence. तो अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं then we need not to write in a capital letter, but जब सेंटेंस से पहले आते हैं तब हमें कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी है. कॉमन पर्सन, women, man, these are the common person. We are talking about not about a particular woman or woman. We are talking about a community of women's. Man. Common place, that is market, hill. Common thing, window, bib, chip, brick, dish. A noun which denotes a group of person or other creatures and collection of things. Noun जिसमें लोगों का झुंड या किसी भी क्रिएचर जैसे कि कोई बर्ड है या एनिमल्स, उनका जो झुंड होता है या चीज़ों की कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. कलेक्शन ऑफ पर्सन, an assembly of listeners, an assembly of worshippers, a colony of people, a congregation of pilgrims. Listeners जब इकट्ठे होके बैठते हैं तो उसको असेंबली कहते हैं. जिसे हम लोकसभा राज्यसभा में सब बैठते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ना असेंबली हो रही है. ठीक है. या हम स्कूल में कहते हैं कि असेंबली हो रही है. पीपल आर असेंबल्ड देयर, चिल्ड्रन आर असेंबल्ड देयर फॉर प्रेयर्स. एंड असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में हम जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम असेंबली कहते हैं, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स. अ कॉलोनी ऑफ पीपल, तो इन जनरल हम कहते हैं ना दिस कॉलोनी, दैट कॉलोनी. तो एक कॉलोनी बन जाती है जब लोग इकट्ठा होकर वहाँ रहने लग जाते हैं. ए कंग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का झुंड. कलेक्शन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ चिकन, अ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, a litter of piglings, a muster of peacocks, and an enemy of ants. Collection of things, a string of onion, a packet of cigarette, a block of houses, a bowl of illness, a cargo of wheat. Noun is non-countable noun. A non-countable noun is a noun which does not have a plural form and which refers to something that you cannot usually count. इसमें plural form नहीं होती है और जो काउंट नहीं हो सकते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं. अ नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस.
जो नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं वो सिंगुलर वर्ब ही सेंटेंस में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर, वाटर, ऑयल, ऑनेस्टी. अब नॉन काउंटेबल नाउन्स के अंडर आते हैं कंक्रीट नाउन और मटीरियल नाउन. द नाउन which donates material or anything or anyone. जो मटेरियल को डोनेट करते हैं या कुछ भी, किसी भी चीज को वो डोनेट करते हैं तो उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं. That you can perceive through your physical senses, जो हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं. That is touch, sight, taste और smell. The judge handed the files to the clerk. अब हम फाइल्स को क्या हाथ से उठा सकते हैं ना, तो जज ने क्लर्क को फाइल्स उठाकर उनको हैंड ओवर की, उनके हवाले की. Abstract noun, the noun which denotes quality, condition or action. Those noun which denotes the quality, जैसे कि kindness is the quality of a person, condition is illness और action kicking of a ball जैसे हम कह रहे थे. तो कोई भी एक्शन हो, क्वालिटी हो या कंडीशन हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. दैट यू कांट परसीव थ्रू योर फिजिकल 5 सेंसेस. जो एक बंदे के अंदर होती है, किसी भी चीज के अंदर होती है, पर हम उसे अपनी 5 सेंसेस के साथ महसूस नहीं कर सकते हैं. Justice often seems to slip out of our grasp.